So very good morning guys. Once again I welcome you all in my YouTube channel. This is Dr. Rahul Mishra. Presently I am dealing with the lecture series of machine tool technology and I have been uploaded many videos in this context. So I request you all please watch those videos first, then see this video. Okay. So this is the continuation of MTT only. We are dealing with the mechanics of basic machining operation. So this is in continuation with that topic only. Today we will discuss what is the difference between the oblique turning and orthogonal turning. We all are saying from sorry, from previous many videos about the orthogonal and oblique, orthogonal and oblique. So what is this orthogonal and what is this oblique? Okay. So presently I am dealing with only turning operation. Okay. What is the difference between oblique turning and orthogonal turning? Very important. Please see carefully. Okay. This is the 3D diagram. Then we will discuss the 2D diagram also. So by looking this 3D diagram, it is the diagram of orthogonal turning and it is the diagram of oblique turning. Please look it carefully that in orthogonal, when we are dealing with orthogonal, okay, when we are dealing with orthogonal, see that this plane of the workpiece and this is like this, okay, draw it parallelly, and this plane, the plane of cutting tool, both are parallel. See both these planes are parallel, but here there is an angle. This plane, this is the plane of workpiece and this is the plane of cutting tool. See, there is an angle, but here all are parallel. So that is why I have written that this is the principal cutting edge angle. Principal, xi s. Xi s is the, sorry, xi s is the end cutting. I am writing here. Xi s is the end cutting edge angle or approach angle. Approach angle. Okay, and lambda is the principal cutting edge angle. Okay. So this is lambda and this is about xi. So here see that xi is 0. Xi is 0 means the plane of this cutting and the plane of this workpiece both are parallel, means the cutting tool is held parallelly to the this plane of the workpiece. It is cutting parallelly, but here see that the cutting tool is inclined at an angle of this plane of the workpiece. So with this plane the cutting tool is at an angle. In orthogonal there is like this, but here like this. Okay, so that's why see the chip is here, the chip is flowing like this and here there is some angle. So this angle is xi s. Similarly this angle is also xi s. So the angle between the plane of the workpiece and the plane of the cutting tool is xi s. So likewise the angle between the chip and the cutting tool will also be xi s. Similarly, okay. And here also see the angle between the chip and the cutting tool are parallel. Here also parallel. So this is the basic difference between oblique and orthogonal. Okay. In oblique, the plane of the cutting tool and the plane of the workpiece held parallel, but in oblique, the plane of the cutting tool and the plane of the workpiece held at an angle xi s. So the existence of xi s will only be in case of oblique machine. Okay, only in case of oblique. Okay, and lambda, here there is lambda also, some angle, inclination angle. See, it is not 90 degree, but here lambda is 90 degree. This will be more clear in 2D diagram. Here there is lambda also, but lambda is not 90 degree, and xi s is also there. But in orthogonal, xi s is 0. See. Now let us see. So I think this is clear by seeing this diagram, 3D view of oblique and orthogonal. Now let us come to the 2D diagram. Let us first draw the orthogonal turning diagram. So like this is parallel, cutting parallelly, but here there is some angle. Cutting tool is at an angle. So here it is the cutting tool. Okay. One thing remember that previously आपका वर्क पीस ऐसा रहा होगा पूरा कंप्लीट, जिसको आपने काट दिया, मशीनिंग कर दिया यहाँ से. तो ये जितना अंदर आपका टूल घुसा हुआ है, वर्क पीस के कितना अंदर टूल घुसा हुआ है, दैट इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ कट. तो ये डी रहेगा. ठीक है, यहाँ पे भी ये डी रहेगा. ये टूल कितना अंदर घुसा हुआ है, यही आपका डी है.
ठीक, समझना ध्यान से, कंपेयर करके बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझ में नहीं आता किसी को। अब दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका टूल का जितना पोर्शन अंदर घुसा हुआ है, मैं कितना अंदर टूल घुसा है, वर्टिकली कितना अंदर घुसा है, वो डेप्थ ऑफ कट हो गया। लेकिन ये टूल का कितना पार्ट वर्क पीस के साथ कांटेक्ट में है, उतना ही आपका विड्थ ऑफ कट होता है या विड्थ ऑफ चिप होता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जितना पार्ट टूल का आपका अंदर घुसा हुआ है वर्क पीस के, वही आपका विड्थ ऑफ कट होता है या विड्थ ऑफ चिप होता है। तो ये आपका देखिए विड्थ ऑफ कट भी यही होगा, डेप्थ ऑफ कट भी यही होगा। देखिए W और D बराबर हो गया, यहां लिख दिया मैं W और D बराबर। लेकिन वही चीज यहां देखिए, अब ये इतना पोर्शन अंदर है आपका, कटिंग टूल का इतना पोर्शन वर्क पीस के अंदर है। अब ये इंक्लाइंड हो गया ना ऐसे, D तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है और W ऐसा इंक्लाइंड हो गया। तो देखिए यहाँ पे W और D अलग हो गया, आपको डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा, W और D अलग हो गया, समझ में आया। तो जब कभी भी ऑर्थोगोनल टर्निंग बोलेगा तो W D के बराबर होगा, लेकिन ऑब्लिक टर्निंग के केस में W D के बराबर नहीं होगा। मिस्टेक यही होता है, समझ में आया, ध्यान दीजिएगा। आप टर्निंग देख करके ये फॉर्मूला लगा दिए तो गलत हो जाएगा। अगर ऑर्थोगोनल टर्निंग बोला तभी होगा W और D बराबर। सिमिलरली अब ध्यान दीजिए, जो आपका विड्थ ऑफ कट होता है, ठीक है, ये विड्थ ऑफ कट हो गया, W यूनिट डिस्टेंस जिसको मैंने हाईलाइट किया देखिए ऑरेंज कलर से, उसके परपेंडिकुलर जितना फीड होगा, फीड तक का जितना भी डिस्टेंस होगा, जो फीड होगा, अब देखिए फीड क्या है, इस डायरेक्शन में फीड है। तो फीड क्या होता है यहां पे, जब कभी भी टर्निंग की हम बात करते हैं, फॉर टर्निंग, दूसरा मशीनिंग प्रोसेस के साथ भी मैं कंपेयर करके बताऊंगा इसके बाद, पहले इसको ध्यान दीजिए। टर्निंग के लिए जो फीड होता है उसका यूनिट होता है मिलीमीटर या मीटर जो भी हो पर रिवॉल्यूशन, इसको ध्यान दीजिए। तो फीड का मतलब कुछ नहीं है कि एक रिवॉल्यूशन में आपका टूल कितना मूव किया इससे, ठीक है। यहां से चल रहा होगा, मैं मान लेता हूं मेरा फीड 2 मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन, तो टर्निंग में डेफिनेटली रिवॉल्यूट करेगा ना, गोल घूमेगा टर्निंग में। तो ये रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो एक रिवॉल्यूशन के बाद, पहला रिवॉल्यूशन हो गया, उसके बाद टूल कितना अंदर जाएगा, 2 मिलीमीटर। फिर एक बार और घुमा तो टूल कितना अंदर जाएगा, 2 मिलीमीटर। फिर यहां पे आया, अब फिर एक रिवॉल्यूशन हो गया, ये पोर्शन कट गया, फिर टूल कितना इस साइड जाएगा, 2 मिलीमीटर। तो ये 2-2 मिलीमीटर के गैप में जितना फीड होगा वो 2-2 मिलीमीटर होगा। तो ये जो मैंने बनाया देखिए यहां लिखा है फीड है, ये क्या है, फीड है। और ये क्या रहेगा, ये जो जितना पोर्शन आपका कटिंग टूल है, कटिंग टूल के पैरेलल ही बनता है। तो कटिंग टूल यहाँ वर्टिकल है, तो कटिंग टूल का कटिंग सरफेस जो है ना, उसके पैरेलल ही फीड बनता है। तो ये आपका कटिंग सरफेस है कटिंग टूल का, तो इस सरफेस के पैरेलल ही आपको फीड बनाना है और इक्वल डिस्टेंस पे बनाना है, यही फीड होता है। तो ये 2 मिलीमीटर मान लीजिए, एक रिवॉल्यूशन के बाद इतना मूव किया 2 मिलीमीटर, फिर एक रिवॉल्यूशन के बाद 2 मिलीमीटर, फिर एक रिवॉल्यूशन के बाद 2 मिलीमीटर, ऐसे काटते काटते जाएगा, इसको मैं फीड बोलता हूं। तो ये मेरा फीड आ गया देखिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि कटिंग टूल का जो सरफेस है जिसको मैं विड्थ ऑफ कट बोल रहा हूं, तो ये विड्थ ऑफ कट के परपेंडिकुलर अगर आप फीड तक का लाइन डिस्टेंस लोगे, विड्थ ऑफ कट के परपेंडिकुलर अगर आप फीड तक जितना भी होगा वहां तक का डिस्टेंस लोगे तो वो अनकट चिप थिकनेस कहलाता है। क्या कहलाता है वो, अनकट चिप थिकनेस T1, ठीक है, ये अनकट चिप थिकनेस T1। तो ये डायग्राम देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए T1 और ये फीड बराबर है, तो T1 F हो गया। अब आते हैं अपन ऑब्लिक के केस में, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मेरा फीड है, ये ऐसा जा रहा है, इसके पैरेलल अगर मैं लूं तो ये डिस्टेंस है फीड का उतना ही बराबर, ये जितना चाप है F, ये चाप आप यहां से इधर काट दीजिए, उसके पैरेलल ऐसा ड्रॉ कर दीजिए, तो ये फीड आ जाएगा। तो ये जो फीड आ रहा है देखिएगा ध्यान से, ये जो फीड आते जा रहा है, अब मैं क्या करूंगा, यहां मेरे को पता चल गया कि डेप्थ ऑफ कट और विड्थ ऑफ कट अलग हो गया, ये विड्थ है, ये विड्थ है और ये डेप्थ ऑफ कट है, तो ये W और D अलग हो गया, इक्वल नहीं होगा। दूसरा चीज, अब ये विड्थ ऑफ कट जो आया, इसके परपेंडिकुलर में अगर फीड तक लेके जाऊं उसको, परपेंडिकुलर विड्थ ऑफ कट के परपेंडिकुलर, तो मेरा T1 आएगा अनकट चिप थिकनेस, तो देखिए T1 आ गया। और एक्चुअल फीड जो है वो क्या है, ये AB वाला डिस्टेंस देखिए, ये तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना हॉरिजॉन्टली, तो एक्चुअल फीड तो यही होगा। ये देखिए ये फीड आया, इसके बाद एक और आएगा ये फीड, फिर इधर आएगा फीड, फिर इधर आएगा फीड, तो ऐसा जाते जाएगा। तो अब देखिए ये फीड और T1 बराबर है क्या, अलग हो गया ना, ये वाला डिस्टेंस T1 है और ये AB फीड। तो अब देखिए यहाँ पे F1 और F और T1 में बराबर नहीं रहा, जो आपका ऑर्थोगोनल के केस में था, ऑब्लिक में वो बराबर नहीं है। तो समझ आया ऑब्लिक में और ऑर्थोगोनल में अंदर, ऑब्लिक में आपका xs और लैम्डा दोनों रहेगा, ऑर्थोगोनल में xs 0 हो जाएगा, लैम्डा 90 डिग्री रहेगा। दूसरा चीज, ऑर्थोगोनल में T1 F के बराबर होगा, W D के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे W D के बराबर नहीं होगा, T1 F के बराबर नहीं होगा। आप अगर ये पोर्शन जो है ये वाला,
ये ए बी सी डी, ये ट्रायंगल को अगर आप जूम करके देखो, मैं इधर बनाया देखिए ए बी सी डी। तो यार देखिए ए बी वाला डिस्टेंस मेरा फीड है, ये बी सी वाला डिस्टेंस मेरा डेप्थ ऑफ कट है, ये सी डी ये सी ए वाला डिस्टेंस मेरा विड्थ ऑफ कट है, और ये बी डी जो बनाया परपेंडिकुलर ये मेरा T1 है, अनकट थिकनेस। तो यही चीज मैंने ये जो छोटा सा दिख रहा था यहाँ बड़ा करके बना दिया, आपको समझने में आसानी होगा। तो यहाँ देखिए ये एंगल जो होता है जाइयस होता है, ये लैम्डा होता है, जाइयस और लैम्डा, तो यहाँ देखिए दोनों है। और ये चीज अगर वर्टिकल हो जाता तो जाइयस 0 हो जाता, लैम्डा 90 डिग्री हो जाता, जो ये वहां केस था ऑर्थोगोनल का। अब ये जाइयस है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी जाइयस होगा, देखिए मैं येलो कलर से बनाया करस्पॉन्डिंग एंगल है जाइयस। ये लैम्डा है तो अल्टरनेट एंगल ये वाला भी लैम्डा होगा, यहां लिख दूं। तो ये वाला एंगल लैम्डा है, ये वाला, और ये एंगल जाइयस है, ये 90 है, ठीक है। अब देखिए ये जाइयस है तो डेफिनेटली ये भी जाइयस होगा, तो ये जाइयस लिख दिया, ये 90 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस जाइयस, ये एंगल भी आ गया 90 माइनस जाइयस। क्लियर। तो यहां से मेरे को अब एक रिलेशन मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, ध्यान दीजिएगा। ऑर्थोगोनल के रिलेशन मेरे को मिल गया, T1F के बराबर होता है WD के बराबर होता है, यहां पे नहीं होता, यहां ध्यान दीजिएगा। अब मैं अगर ये ट्रायंगल की बात करूं ABC, ट्रायंगल ABC, इसकी बात करूं ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, देखो यहां लिख रहा हूं cos जाइयस, अगर मैं लूं तो cos जाइयस, ये वाला एंगल है जाइयस, ये 90 है ABC में, ये जाइयस है, तो cos जाइयस इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो d अपॉन w, तो cos जाइयस आ जाएगा d अपॉन w। समझ में आया। देखिए वहां पे w d के बराबर था, लेकिन यहां पे w इक्वल टू क्या हो जाएगा d अपॉन cos जाइयस। समझ में आया। और एक चीज डायग्राम देख के जो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए w क्या है हाइपोटेन्यूज है, और d क्या है बेस है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, इसका मतलब w इज ग्रेटर देन d रहता है हमेशा ऑब्लिक के केस में। ऑब्लिक के केस में हमेशा क्या होगा w इज ग्रेटर देन d होगा, यहां w बराबर था d, यहां ग्रेटर देन होगा, और कितना होगा वैल्यू d अपॉन cos साइंस। क्लियर। ये हो गया। मैं अगर ट्रायंगल ABD की बात करूं, ट्रायंगल ABD यहां लिखो, इन ट्रायंगल ABD इसकी अगर बात करूं, इसमें अगर मैं cos जाइयस लूं, ये एंगल भी जाइए ABD, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है जाइए, तो ये क्या हो जाएगा cos जाइयस अगर लूंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये BD अपॉन AB मतलब T1 अपॉन F, तो cos जाइयस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BD अपॉन AB मतलब T1 अपॉन F। तो यहां पे देखिए T1 F के बराबर था, लेकिन यहां कितना हो गया T1 बराबर F cos जाइयस। क्लियर। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। T1 इज इक्वल टू F होता है ऑर्थोगोनल के लिए, लेकिन ऑब्लिक के लिए T1 इज इक्वल टू F cos जाइयस होता है। W इज इक्वल टू D होता है ऑर्थोगोनल के लिए, लेकिन ऑब्लिक के लिए W इज इक्वल टू D अपॉन cos जाइयस। क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है भाई, है ना। मेरे को लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये बेसिक डिफरेंस देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसी में हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए मैं 3D और 2D दोनों डायग्राम बना के देखो आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसको ध्यान से समझ लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए इसको। तो अगर ऑर्थोगोनल का केस रहा, ऑर्थोगोनल केस में ये भी एक कंक्लूजन निकल रहा है, देखिए T1 F के बराबर है, W D के बराबर है, तो मैं अगर T1 into W करूं तो ये F into D के बराबर होगा। ये भी एक कंक्लूजन न्यूमेरिकल में काम आता है, ऐसे ही न्यूमेरिकल में गलती होता है, ठीक है। तो मैं अगर आपको रटवा देता डायरेक्ट ऐसा होता है ऐसा होता है, आपको समझ में नहीं आता रट लेते, तो रटना नहीं है, अपने को समझ लेना है। यहाँ अब आप ये डायग्राम देखेंगे तो आपको हमेशा क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज कैसे हुआ, क्यों इक्वल नहीं आ रहा है, क्यों इक्वल आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए डायग्राम देखकर। चलिए इसको मिटा रहा मैं, नोट कर लिए आप लोग।
अब एक चीज आप ध्यान दीजिए कि टर्निंग में ही गोल घूम रहा है, बाकी सारे मशीनिंग प्रोसेस में गोल नहीं घूम रहा है ना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं शेपिंग ले लूं, तो मैं अगर कंपेयर करूं शेपिंग वर्सेस टर्निंग, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो मैं अगर शेपिंग वर्सेस टर्निंग की बात करूं तो देखिए शेपिंग क्या हो रहा है, सिंपल ऐसा है, ये हो रहा है। टर्निंग कैसा हो रहा है, अभी अपन ने देखा डायग्राम, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताइए, ये जो डायग्राम है शेपिंग का बना रहा हूं, टर्निंग का बना रहा हूं, इसको अगर मैं 2D में बनाऊं थोड़ा सा सिंपल एक ब्लॉक डायग्राम से, तो मेरे को देखिए शेपिंग इस टाइप का ही हो रहा है। ये ऐसा है, इस डायरेक्शन में टूल चल रहा है, काट रहा है, तो ये आपका फीड हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में आपका आगे बढ़ रहा है, वर्क पीस आगे बढ़ेगा, ये वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। ये वेलोसिटी हो जाएगा, तो डेफिनेटली देखिए, अच्छा, और तो इस केस में क्या होगा कि मेरा जो टूल है या मेरा जो फीड है, यहां पे टर्निंग में कैसा हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट गोल घूम रहा है, लेकिन यहां क्या हो रहा है, ये एक्सिस है, ये रेसिप्रोकेट हो रहा है, रेसिप्रोकेट हो रहा है, तो यहां पे जो फीड का यूनिट होगा वो कितना हो जाएगा, मिलीमीटर पर स्ट्रोक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और यहां पे फीड का यूनिट क्या होता है, मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन, इस डायरेक्शन में फीड है, यहां पे देखिए ऐसा फीड हो रहा है, और यहां पे इधर फीड आ रहा है, और फीड का यूनिट यहां पे क्या होगा, मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन, यहां पे क्या होगा, मिलीमीटर पर स्ट्रोक। बहुत ही ध्यान से समझिए इस चीज। तो यहां डिफरेंस समझ में आया मशीनिंग और टर्निंग में। अगर आपको ऑर्थोगोनल मशीनिंग बोल दिया, ऑर्थोगोनल टर्निंग बोल दिया, सेम नहीं है, अलग है। अभी अपन ने जो देखा, क्या देखा, ऑब्लिक टर्निंग वर्सेस ऑर्थोगोनल टर्निंग, उसमें डिफरेंस देखिए। अब मैं ऑर्थोगोनल मशीनिंग वर्सेस ऑर्थोगोनल टर्निंग की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मशीनिंग कोई सा ऑपरेशन हो सकता है, मैंने एग्जांपल शेपिंग का ले लिया, तो बाकी सारे मशीनिंग में देखिए रोटेशन नहीं है, रेसिप्रोकेशन है, तो उसका जो फीड का यूनिट होगा वो कैसा होगा, मिलीमीटर पर स्ट्रोक, और टर्निंग में कैसा होगा, मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन। बहुत ही ध्यान से, यहां अपन ने देख लिया है कि ऐसा होता है फीड, ये मेरा फीड होता है, और यही मेरा T1 होता है, ये अपन देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे फीड है, और इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है, विड्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ देखिए ये विड्थ आ जाएगा। तो अब देखिए ऑर्थोगोनल, ये जो है ऑर्थोगोनल मशीनिंग, क्या अंतर हो गया, देखिए फिर से नया फॉर्मूला है ना। और ये जो था ये क्या था, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल टर्निंग। तो ऑर्थोगोनल मशीनिंग और टर्निंग में अंतर देख लीजिए। ऑर्थोगोनल मशीनिंग आपको दिख रहा है ये विड्थ है, ऑब्जेक्ट का विड्थ ऑब्वियसली होगा, तो जितना फीड है उतना विड्थ ऑफ कट है। यहां फीड किसके बराबर है, थिकनेस के बराबर है, अनकट चिप थिकनेस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू W, लेकिन F के यूनिट को ध्यान देना है, मिलीमीटर पर स्ट्रोक होना चाहिए। तो विड्थ ऑफ कट जो है वो फीड के बराबर होगा, और यहां पे F इज इक्वल टू किसके बराबर हो रहा था, T1 के बराबर, लेकिन यहां F का यूनिट कैसा होगा, मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, feed is equal to width of cut for orthogonal machining, and for orthogonal turning feed is equal to uncut chip thickness. Clear? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको, यूनिट भी नोट कर लीजिए।
ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। बाकी तो देखिए अब एक चीज और, अब अगर मैं फोर्स का एनालिसिस अगर करूं टर्निंग के केस में, ये सब मिस हो गया ये वाला, तो इसमें क्या है एक्चुअली, जब मैंने पिछला डायग्राम आपको बनाया था ना उसमें बता देना था, भूल गया मैं, चलिए कोई बात नहीं। तो ये देखिए अगर मैं फोर्स की बात करूं, ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, मेरे को ये पता है कि ये क्या होता है, जाई लैम्डा होता है, ये क्या होता है, जाई एस होता है। तो अब एक चीज देखना ध्यान से कि अगर यहां पे मेरा कटिंग फोर्स आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि कटिंग फोर्स जो रहेगा वो कैसा होगा, मेरा जैसे मान लीजिए टर्निंग अगर हो रहा है, मैं अगर 3D व्यू को थोड़ा एनालाइज करूं, ये साइड व्यू को थोड़ा एनालाइज करूं, तो कैसा दिखता है मेरा ऑपरेशन, देखिए ये ऐसे रहता है ना, एक सर्कल है ऐसा, यहाँ पे आपका टूल है ऐसा, ये हो गया चिप निकल रहा है ना, ऐसा होता है। तो यहाँ पे अगर ये ऐसा घूम रहा है देखिएगा इस डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली ये जो है कटिंग टूल के ऊपर एक फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ये एफसी फोर्स एक लगाएगा। तो ये क्या है, देखिए सर्कल का टेंजेंट है ही नहीं, तो एफसी को मैं क्या बोल सकता हूं, एफसी को मैं क्या बोल सकता हूं, इधर लिख देता हूं, मेन कटिंग फोर्स, और क्या है ये, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, क्लियर, ये बोल सकता हूं, ठीक, क्लियर है। तो अब अगर यही चीज मैं यहां देखूं, इधर इस वाले डायग्राम में था, ये चीज अपन ने लिखा एफसी, ये क्लियर है, ये एफसी आता है नीचे, ये आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, जिसके कारण से अनइवन कैंटी ये फिक्स रहता है इधर। अपन ने क्या देखा था, कैंटिलीवर लोडिंग लगता है, इसलिए अपन ब्रिटल मटेरियल के वाले छोटा सा टूल को बनाते हैं, बाकी पूरा डक्टाइल का बनाते हैं, ये मैं समझा चुका हूं आपको, एफसी है ना। तो ये वही कटिंग फोर्स एफसी है, मेन कटिंग फोर्स बोल लो या टेंजेंशियल, क्योंकि सर्कल के टेंजेंट लग रहा है नहीं, तो आपका टेंजेंशियल कटिंग फोर्स हो गई। अब यही चीज को अगर मैं यहां देखूं तो ध्यान दीजिएगा, इधर पे इसका दो कंपोनेंट मिल जाएगा आपको, अगर मैं यहां किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एनालिसिस करता हूं, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा ऐसा, ध्यान दीजिए, ये है आपका, इतने क्वेश्चन कांटेक्ट है ना, तो इसका परपेंडिकुलर ये ऐसा बनेगा, ये जो परपेंडिकुलर होगा ये मेरे को क्या मिल जाएगा, एफ टी मिल जाएगा, क्लियर, ये जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या मिल जाएगा, एफ टी मिल जाएगा। अब इस एफ टी का दो कंपोनेंट होगा, अब देखिए भाई ये जाइएस है, ये वाला डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली ये भी एंगल जाइएस होगा। अब ये एंगल अगर जाइएस होगा तो मैं अगर यहां से एक हॉरिजॉन्टल बना दूं, ये वर्टिकल, ठीक है, तो ये एंगल भी जाइएस होना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक। तो अगर ये ft है, जाइएस है, तो ये क्या हो जाएगा, ft cos जाइएस, और ये क्या हो जाएगा, ft sin जाइएस, क्लियर, ft sin जाइएस, ये मेरा ऑब्लिक के केस में हो रहा है ना। तो अब देख लो ये ft cos जाइएस जो है वो कैसा हो रहा है, ये एक्सिस के अलोंग है, ये एक्सिस है मेरा, तो ये क्या हो गया, एक्सियल कंपोनेंट, और ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो एक और किसके, ये किसकी रेडियस है ना, इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो वर्क पीस का रेडियस मिलेगा, तो अलोंग द रेडियस है ये वाला फोर्स, तो ये जो कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, रेडियल कंपोनेंट, और ये जो है क्या हो जाएगा, एक्सियल कंपोनेंट। तो आप लिख सकते हो यहां पे एक्सियल फोर्स, या ये किसका डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फीड है ना आपका, तो फीड का भी डायरेक्शन यही होगा, तो इसको मैं फीड फोर्स भी बोल सकता हूं। और ये जो ये वाला, ये किस डायरेक्शन में है, ft sin जाइएस, रेडियस के डायरेक्शन में, तो मैं इसको रेडियल फोर्स बोलूं, सिंपल है। तो देखिए एक टेंजेंशियल फोर्स का मेरे पास दो कंपोनेंट आ गए, एक्सियल और रेडियल, क्लियर, ये किसके केस में हो गया, ऑब्लिक के केस में। अब यही चीज में अगर यहां पे देखो एक और चीज, तो देख लो ये जाइएस और लैम्डा मिला के कितना बना रहा है, जाइएस प्लस लैम्डा बराबर 90 डिग्री बना रहा है ऑब्लिक के केस में। अब यही चीज मैं अगर देखूं ऑर्थोगोनल के लिए, अब ये चीज देखते हैं ऑर्थोगोनल के लिए, ठीक है, ऑर्थोगोनल टर्म, तो यहां देखिए डायग्राम ऐसा ना हो कि वर्टिकल हो जाता है, अभी आपको पढ़ाया हम, तो ये भी ऐसा हो गया,
ठीक, तो ऐसा हो गया। तो आप देखिए टेंजेंशियल क्या होगा, इससे परपेंडिकुलर होगा तो ft इधर आ जाएगा, यहाँ पे साई s 0 हो गया, और ये वाला एंगल होता है लैम्डा, तो लैम्डा बराबर 90 डिग्री आ गया। तो कैसा है देखो, अगर इस फॉर्मूला में साई s को 0 पुट करोगे तो लैम्डा 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, तो ऐसे ही लैम्डा आ गया 90 डिग्री। अब देखिए लैम्डा 90 डिग्री आ गया। अब मेरे को पता है एक्सियल कंपोनेंट जो है वो क्या होता है, ये ft आ गया, एक्सियल कंपोनेंट ये एक्सिस है, और रेडियल कंपोनेंट यहाँ नहीं है, 0 है। तो आप देखो डायरेक्ट यहाँ पुट करके भी निकाल सकते हो, ft cos xi s है, आप xi s को 0 पुट कर दो तो cos 0 1 होता है, ft आ गया आपका 1, है एक्सियल कंपोनेंट आ गया ft। और ऐसे रेडियल फोर्स में क्या है, ft sin xi s 0 है, तो sin 0 0 होता है, तो ft 0 होगा, तो रेडियल फोर्स 0 आ गया, एक्सियल कंपोनेंट क्या आ गया, ft आ गया। ये इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एक्सियल और फीड फोर्स, एक्सियल और फीड फोर्स। ऑर्थोगोनल के लिए यही वाला रहेगा, रेडियल वाला जो हो जाएगा, रेडियल फोर्स वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों होगा देख लो, ft sin xi s 0 है, यहाँ 0 पुट कर दो, sin 0 0 होता है, तो ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो रेडियल फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है, ऑब्लिक और स्ट्रेट, ठीक है, समझ आ गया। ठीक, तीन फोर्स अपन ने देख लिया। सबसे पहले क्या है, एफसी को मैं क्या बोलता हूं, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये दोनों में रहेगा, चाहे ऑब्लिक टर्निंग हो चाहे ऑर्थोगोनल टर्निंग हो। और ft cos xi s जो है वो क्या है, एक्सियल फोर्स या फीड फोर्स ऑब्लिक के लिए, और एक्सियल फोर्स और फीड फोर्स ऑर्थोगोनल के लिए क्या है, ft है। वैसे रेडियल फोर्स ऑब्लिक के लिए ft sin xi s, और रेडियल फोर्स ऑर्थोगोनल के लिए 0। तो ये तीन चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए जल्दी, फिर मैं मिटाऊंगा इसको। जल्दी नोट करिए जरा। चलिए अब इसको मिटा रहा हूं ना। अब एक छोटा सा टॉपिक देखिए, डिफरेंट जोन्स, सॉरी shear zones in machine। हालांकि मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए ये अपना डायग्राम होता है, ठीक है, टूल है, यहां से ऐसा चिप फ्लो करता है, इजंट इट। तो ये आपका चिप हो गया, टूल हो गया, वर्क पीस हो गया। तो अब देखिए ये वाला जो जोन है, शेयर प्लेन, ये शेयर प्लेन था। यहां पहले सबसे पहले शेयर कहां है, जब टूल टकरा रहा है वर्क पीस में और प्रोपोगेट कर रहा है वो कब तक, शेयर प्लेन तक, जब तक मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ अचीव नहीं करता। यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, सब जगह होगा, लेकिन यहां पे शेयर मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम कहां होता है, शेयर 45 डिग्री एंगल। तो जब तक वो ये मैक्सिमम एंगल नहीं अचीव करता तब तक वो जुड़ा ही रहेगा। जैसे ही इस प्लेन में आ जाएगा मैक्सिमम एंगल, तो यहां पे वो टूट जाएगा, चिप बन जाएगा। क्लियर। तो ये वाला जो जोन है आपका, इसको मैं बोलता हूं प्राइमरी शेयर जोन, ठीक। अब उसका जैसे ही चिप बना जैसे, तो क्या कर रहा है, टूल के ऊपर फ्लो कर रहा है, तो ये वाला जो रीजन है, इन दोनों में भी शेयर होगा, इन दोनों में भी शेयर होगा, तो इसको मैं बोलता हूं सेकेंडरी शेयर जोन। क्लियर। और ये टूल जहां वर्क पीस में टकरा रहा है, तो एक छोटा सा अपन ने बिल्ट अप एजकल आप एग्जांपल दिया था पिछले क्लास में, नहीं सॉरी अभी नहीं पढ़ाया अभी तक। तो ये वाला जो जगह होगा
पढ़ाऊंगा। तो ये जो जगह होगा ये वाला जहां पे टूल आके टकरा रहा है वर्क पीस से, तो ये जो छोटा सा जगह होगा इसको मैं बोलता हूं टर्शरी शियर जोन। टर्शरी शियर जोन, ये 3 शियर जोन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, अब प्राइमरी शियर जोन बेसिकली क्या है, शियर प्लेन को बोलते हैं, है ना। ये इतना शियर प्लेन ही होता है, अभी समझाया आपको। और ये वाला जो क्या है सेकेंडरी, कटिंग एज और वर्क पीस का। ये टर्शरी जो क्या है, कटिंग एज और वर्क पीस का इंटरफेस। ये है कटिंग एज और वर्क पीस इंटरफेस। और ये सेकेंडरी वाला कहां पे आ रहा था, चिप टूल इंटरफेस। चिप टूल इंटरफेस ये सेकेंडरी शियर, कटिंग एज और वर्क पीस इंटरफेस टर्शरी शियर। ठीक है, नोट करिए। समझ आ रहा है। तो ये डायग्राम, अब ये डायग्राम देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इस टर्शरी जोन के कारण क्या हो रहा है, जब कटिंग टूल आपका वर्क पीस में टकरा रहा है बार बार, तो यहाँ पे शियर डेवलप हो रहा है। इसके कारण से क्या हो रहा है, आपका कटिंग टूल ऐसा होना चाहिए, उसकी जगह वो इस टाइप का हो जा रहा है। तो ये जगह जो है ब्लंट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, ये ब्लंट हो जा रहा है। तो ब्लंट हो जा रहा है तो काट नहीं पाएगा, पावर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पावर कम हो जाएगा, सबसे ज्यादा पावर यहाँ रहेगा, उससे कम यहाँ रहेगा, सबसे कम यहाँ रहेगा। क्लियर, क्यों कम रहेगा सबसे, वो आपको बताना। तो ये 3 टाइप का जोन होता है, बहुत सिंपल सा चीज था, लेकिन एग्जाम में कई बार गेट के एग्जाम में पूछ लेता है कि शियर जोन मतलब क्या होता है। तो आपको बताना है शियर जोन, प्राइमरी शियर जोन किसको बोलते हैं, तो आपको बोलना है शियर प्लेन को बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया सेकेंडरी शियर जोन इज वेयर, क्या होता है, तो आपको बताना है कि इट इज द इंटरफेस बिटवीन द चिप एंड द टूल। वैसे ही टर्शरी शियर जोन क्या है, तो आप बोलोगे इंटरफेस बिटवीन द कटिंग एज एंड वर्क पीस। ठीक है, चलिए उसको मिटाते हैं हम। अब अपना अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ चिप्स। टाइप्स ऑफ चिप्स, ठीक है, एकदम सिंपल है, जल्दी से बता देता हूं इसको। बेसिकली हमारा 2 टाइप होता है देखिए चिप्स में। एक होता है कंटिन्यूअस चिप और एक होता है डिसकंटिन्यूअस चिप। ठीक, कंटिन्यूअस चिप फर्दर 2 टाइप का होता है। एक होता है सिंपल कंटिन्यूअस चिप और एक होता है कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्ट अप एज, BUE बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस चिप विद बिल्ट अप एज और डिसकंटिन्यूअस चिप। पहले अपन डिसकंटिन्यूअस चिप देखते हैं। डिसकंटिन्यूअस चिप कब होगा, जब आपका मटेरियल ब्रिटल होगा। मैंने आपको बताया था एक्सप्लेन करके, जब मैंने रीजन बताया था ना कि क्यों आपका T2 इज ग्रेटर देन T1 होता है, व्हाई चिप थिकनेस इज ग्रेटर देन अनकट चिप थिकनेस इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स। और ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या होता है, जनरली बराबर होता है। तो मैंने क्यों बताया था आपको, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, वॉइड्स रहता है। जैसा जैसा आपने टेंसाइल लोड बढ़ाया तो वॉइड्स बढ़ता जाता है, क्रैक प्रोपोगेट होता जाता है और आगे टूट जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इतना जल्दी टूट जाता है कि आपके थिकनेस को बढ़ने का टाइम नहीं मिलता, इलोंगेट नहीं हो पाता अंदर का पार्टिकल। लेकिन डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है उसका, तो आप जैसे जैसे टेंसाइल लोड लगाएंगे अंदर के पार्टिकल्स इलोंगेट हो जाएंगे, उनके बीच का बॉन्ड इलोंगेट होता जाएगा। तो डेफिनेटली बॉन्ड इलोंगेट हो गया मतलब पहले उसका थिकनेस कम था, अब इलोंगेट हो गया तो थिकनेस बढ़ गया उसका। तो इसलिए जब वो कट के निकलता है तो उसका थिकनेस बड़ा हो जाता है। तो इसलिए T2 ग्रेटर देन T1 हो जाता है डक्टाइल मटेरियल में। वो अपन अभी बाद में यहाँ पढ़ेंगे। तो अभी डिसकंटिन्यूअस चिप कब आएगा, या ब्रिटल टूट जाएगा, टूट के निकलता जाएगा, तो चिप कंटिन्यूअस नहीं आएगा। अब डिसकंटिन्यूअस चिप में क्या होता है, एक इधर ध्यान दीजिएगा, एक रेगुलर शेप का रहता है ऐसा, कंटिन्यूअस शेप का चिप निकलेगा।
और एक जो रहता है वो डिसकंटिन्यूअस शेप रहता है, कुछ भी शेप निकल सकता है, किसी भी शेप। ठीक है, तो ये जो है वो रेगुलर शेप का है और ये क्या है, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर, तो रेगुलर और इरेगुलर कब होगा? इरेगुलर कब होगा? जब नेचुरली ब्रिटल मटेरियल, नेचुरली ब्रिटल मटेरियल का होगा। आपका जब मटेरियल नेचुरली ब्रिटल है, फॉर एग्जांपल सिरामिक आपने ले लिया, नेचुरली ब्रिटल है, ठीक है, तो ग्लास नेचुरली ब्रिटल है, तो उसका इरेगुलर शेप आएगा। लेकिन ऐसा मटेरियल जो पहले डक्टाइल था, लेकिन आपने उसको हार्डनिंग कर दिया, हार्डनिंग करके उसको ब्रिटल बना दिया, वो एक्चुअली नेचुरली वो ब्रिटल नहीं है, नेचुरली दैट मटेरियल इज डक्टाइल, बट यू हैव डन हार्डनिंग ऑन दैट मटेरियल, तो क्या हो गया? वो ब्रिटल हो गया। तो वैसा, हालांकि वो डिसकंटिन्यूअस चिप देगा, लेकिन वैसा मटेरियल का जो चिप रहेगा वो रेगुलर शेप एंड साइज का रहेगा। इसका शेप एंड साइज देखो आपको रेगुलर दिख रहा है कि, और ये इरेगुलर, तो इरेगुलर शेप एंड साइज कब होगा? डिसकंटिन्यूअस चिप्स विद इरेगुलर शेप एंड साइज कब होगा? जब आपका मटेरियल नेचुरली ब्रिटल है। और डिसकंटिन्यूअस चिप विद रेगुलर शेप एंड साइज कब होगा? जब आपका मटेरियल नेचुरली ब्रिटल नहीं है, नेचुरली डक्टाइल है, लेकिन आपने हार्डनिंग करके उसको ब्रिटल बना दिया, तो रेगुलर शेप एंड साइज का होगा। क्लियर? तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस चिप की बात हो गई। अब अपन आते हैं कंटिन्यूअस चिप में। अपन ने दो तरीका देखा, एक क्या होता है ऐसा, ये कंटिन्यूअस चिप निकालना, और एक क्या है कंटिन्यूअस चिप विद बिल्ट अप एज। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, ये ऐसा गोला गोला कुछ पार्टिकल रहेगा। क्यों आएगा वो, क्यों आएगा बता रहा हूं कि यहां पे एक ऐसा डेवलप हो जाएगा इस जगह, जो आपका टर्सरी जोन, मैंने बताया था ना टर्सरी जोन बिल्ट अप एज यही है। तो क्या होता है देखिए, यहां पे इस जगह में आपका जो वेलोसिटी होगा हाई होगा, तो बहुत ज्यादा हाई होगा तो हीट फटाफट डिसिपेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कम रहेगा, आप जिस मशीनिंग वेलोसिटी जो है, जिस वेलोसिटी से आप मशीनिंग कर रहे हैं वो कम होगा। कम होगा तो क्या होगा, हीट को डिसिपेट नहीं मिले, जगह नहीं मिलेगा जल्दी डिसिपेट होने का, तो हीट क्या होगा, वर्क पीस के अंदर आ जाएगा। अब वर्क पीस के अंदर आके एक्यूमुलेट हो गया इस जगह में, जहां पे आपका कटिंग टूल, कटिंग एज है और वर्क पीस है, इस जगह में एक्यूमुलेट हो जाएगा heat। तो अब क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है यहाँ काट रहा है तो हीट आएगा ना। अब अगर जल्दी जल्दी आप मशीनिंग कर रहे हो तो हीट क्या होगा, फैल जाएगा। लेकिन जल्दी नहीं कर रहे हो तो हीट जमा हो जाएगा इसी जगह में जहां से कटिंग हो रहा है। तो उस जगह में जमा होने के कारण क्या होगा, वर्क पीस के मटेरियल को पिघला देगा, वर्क पीस के मटेरियल को पिघला देगा, और क्या होगा, थोड़ा सा वर्क पीस का मटेरियल आपके कटिंग टूल में चिपक जाएगा। अब ये पहले के लिए तो अच्छा है, क्योंकि क्या हो रहा है, आप जैसा मशीनिंग कर रहे हो शुरुआती लिए अच्छा है, पॉजिटिव इफेक्ट है, बिल्टअप है जैसा पॉजिटिव इफेक्ट। बट इनिशियली क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, आप जैसे टूल से काट रहे हो तो टूल का मटेरियल, जैसे ये टूल है, आप काट रहे हो तो ये जगह थोड़ा सा इरोड हो जाएगा, फट जाएगा, वियर हो जाएगा, तो ये टूल आपका ऐसा हो गया। लेकिन चूंकि आपका हीट के कारण वर्क पीस का मटेरियल निकल के टूल में एक्यूमुलेट हो गया, तो ये जो लॉस था उसको ओवरकम कर लिया। तो जब ये कब होगा, जब छोटा रहेगा ये। लेकिन जैसे जैसे आपका मशीनिंग बढ़ता जाएगा आगे, हीट बढ़ता जाएगा, तो ज्यादा मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो ये नेगेटिव इफेक्ट हो गया। तो बिल्ट अप एज का दो इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा कि टूल वियर को एक्यूमुलेट करेगा, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट क्या हो गया, जैसा जैसा हीट बढ़ता गया वो बिल्ट अप एज बन जाएगा, तो ये नेगेटिव इफेक्ट है। तो उसके कारण क्या होगा, ये ऐसा बन गया। आप सोचिए, आप काट रहे हैं तो कैसे काटेगा, ये इस टाइप का कट जाएगा मटेरियल आप, तो इस टाइप का कटता जाएगा, कटता जाएगा, कब तक कटता जाएगा, जब तक मैक्सिमम शियर प्लेन नहीं आता। जैसे ही मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ आ जाएगा उसका तो चिप बन के निकल जाएगा। तो जब चिप बनेगा तो ये जो पोर्शन जो बड़ा वाला आया था ये उखड़ के निकला, तो ये ऐसा आ जाएगा चिप के ऊपर, तो ये चिप के ऊपर उखड़ के निकल जाएगा, तो ये बिल्ट अप है। तो बिल्ट अप क्या है, डक्टाइल मटेरियल है, कंटीन्यूअस चिप किसके लिए आएगा, डक्टाइल के लिए। लेकिन डक्टाइल मटेरियल अगर हाई स्पीड में मशीनिंग हो रहा है तो सिंपल कंटीन्यूअस चिप निकलेगा, लेकिन डक्टाइल मटेरियल अगर लो स्पीड में मशीनिंग कर रहे हो तो बिल्ट अप आ जाएगा। समझ आ रहा है? दूसरा चीज, यहां पे अपन कूलेंट वगैरह भी यूज कर देते हैं, कूलेंट या लुब्रिकेंट, तो क्या होगा, हीट को बढ़ने नहीं देगा वो। लेकिन यहां पे आप क्या कर रहे हो, कूलेंट और लुब्रिकेंट यूज नहीं कर रहे हो, तो भी हो सकता है बिल्ट अप है। कूलेंट और लुब्रिकेंट आपने यूज नहीं किया तो भी यहाँ पे यूज कर रहे हो, यहाँ नहीं कर रहे हो, तो नहीं करने से ही बढ़ सकता है। तो ये कॉजेस है बिल्ट अप एज क्यों आता है। और क्या है, फीड ज्यादा होगा, डेप्थ ऑफ कट ज्यादा होगा, यहाँ पे फीड कम होगा, डेप्थ ऑफ कट कम होगा, तो ये आप कॉमन सेंस से आप समझ के लिख सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है गेट में। तो टाइप्स ऑफ चिप्स मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और कुछ बचा क्या, हाँ रे क्या,
रेक एंगल। यहाँ पे क्या है आपका डक्टाइल मटेरियल के हमको पता है कि रेक एंगल कैसा होना चाहिए, अल्फा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और ब्रिटल मटेरियल के लिए अल्फा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये मैं रेक एंगल जब पढ़ाया था तो पढ़ा चुका हूं, वो भी चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, बाकी और कुछ है नहीं। ठीक, और एक चीज कॉमन सा चीज है कि डेफिनेटली अगर बिल्ट अप जा रहा है आपका तो यहाँ पे सरफेस फिनिश पूरा अच्छा है, लेकिन यहाँ पे सरफेस फिनिश खराब हो जाएगा बिल्ट अप के कारण। तो ये सब ऐसी कॉमन सेंस है जो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपका ये बेसिक मशीनिंग ऑपरेशन, जो मैकेनिक्स ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन है, वो कंप्लीट होता है। अब इसका एक पार्ट बचा है मर्चेंट सर्कल डायग्राम। मर्चेंट ने अपना कुछ थ्योरी दिया था डिफरेंट फोर्सेस को निकालने के लिए, तो वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। क्लियर है? तब तक इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जय हिंद, जय भारत गाइस, थैंक यू। मेरे वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।